Hello and welcome back to your channel Freak Safari. I hope you guys are doing good and studying well. This is the second video lesson on the EMI. I believe you must have gone through the previous video. If not, then you have the link in the I button as well as in the description box. And guys, if you like the way I teach, please do like, share and subscribe. Well, that's gonna be a great help. All good? So, having said that, let us see what we have done in the previous video lesson. In the previous video lesson, we have understood the meaning of AMI. It's all about the electric effect of magnetism. सिंपल सी बात है. That's what we have discussed in the previous video. और इसमें हमने चर्चा किया था in deep detail. मैंने आपको समझाया था how the polarity develops and how the induced EMF comes up and then the induced current because of the change in the position or because of the motion of the conductor in a magnetic field. And we had so far discussed about the uniform magnetic field. Now, today we are going to discuss about the laws that takes care of this, EMI. So, majorly we have two laws, the Faraday and the Lenz laws. These two are the only laws which will be taking care of this entire huge topic, इस सारे EMI का जो भी है करता धरता यही दो भाई साहब हैं, and these two people are the responsible for these lectures that we have, these concepts that we have. I mean, like, that's a good job. I mean, like, that's a great thing what they've done. These great people, they do tell you some very specific situations and that becomes the law. तो इन महान आदमी को यही सब निशानी होता है. आई बिलीव आप में से भी कोई इस तरह के महान आदमी बनेंगे और हम उसका बाद में नाम लेंगे कि भैया ये भी एक महान आदमी जिसको हम जानते हैं. एनीवेज, तो फटाफट फैराडेज लॉ स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर आई टीच यू द फैराडेज लॉज, कुछ हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. आई एम गोना टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स. आई बिलीव यू मस्ट हैव सीन द वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात किया था. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है. Only one thing which we have in different is the magnetic field and there we had the electric field. बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नया इसमें नहीं है. अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आ गया था तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझने में भी you will not be having any sort of issues और आप इसको बहुत ही मजे में आसानी से समझ जाओगे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेम ही है बच्चों. Phi, I'm gonna just add a B over here just for the clarity that it is all about the magnetism के बारे में है, तो हमने एक B लगा दिया. होता सेम ही है. it's all about your B dot. Let's suppose if I'm looking for the small area or simple ले लो B dot A. Now B is a vector quantity, A is a vector quantity और ये अपना स्केलर क्वांटिटी है. दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज गोना बी मैग्नेटिक फ्लक्स. तो एक बार फटाफट रिवाइंड कर देता हूं. मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस passing normally to the area, passing perpendicular to the area. It means passing along or opposite to the area vector. उसको हम लोग बोलते हैं magnetic flux. And I've also told you during the electrostatic कि भैया magnetic electric flux जो होता है that tells you about the how much energy is passing through that particular area. Let us suppose, simple सा बात समझते हैं. एक अगर आप भूल गए हो तो let us suppose कि I'm standing like this in front of the board, और बहुत सारे bullets और maybe उसमें तो जानी चली जाएगी. लेट्स सपोज खेलने वाला बुलेट्स, द स्पोर्ट, द गेम्स दैट वी प्ले. तो इफ इट इज कमिंग टू मी, कोई सामने से बंदा कैमरे के पीछे से मार रहा है, तो माय एंटायर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू दैट और मेरे को बूम बम बूम बहुत सारे लग जाएंगे ना. तो आई एम गोना हैव मैक्सिमम इंपैक्ट if I just tilt a bit, अगर हम tilt हो जाए तो only this part of my area is gonna be exposed to that, you can say the attack of the bullets. तो मेरे में थोड़ा सा कम चोट लगेगा, I will be slightly safe, which means my dear, the amount of bullets which I'm taking on depends upon the area which is exposed to that. जो उसके path के आप मान के चलो कि perpendicular में हो रखा है. If I tilt it a bit, चोट कम लगेगा. पूरा ऐसे हो गए तो बच ही जाएंगे, मान के चलो कि थोड़ा बहुत निकल जाएगा. तो दैट इज द होल आइडिया अबाउट हियर कि कितना एनर्जी पास करता है, बिकॉज फ्लक्स टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी और नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू दैट. और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो एनर्जी कैरी करता है. मैंने आपको बता रखा है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक. आपने उसको देखा जरूर होगा, नहीं तो एक बार देखना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन. जब आप पूरे बोर्ड्स का एग्जाम दोगे तो फटाफट रिवाइज करना. एंड दैट टाइम आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सम you can say the revised or summarized topic wise revision, उसको हम बाद में करेंगे. Anyways, so flux is all about B dot A. अपने को पता है कि एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं कि अगर मेरा एक एरिया है,
इफ आई हैव एरिया, इसका एरिया वेक्टर मान लो ए इस तरफ है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको ये सब पता है। और लेट्स सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इसको क्रॉस कर रहा है, तो आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी क्रॉसिंग थ्रू दिस, आराम से पूरे बहुत ही cos 0 1 होगा, मैक्सिमम जाएगा। अगर मैं बच्चों इसको टिल्ट कर दूं थोड़ा ऐसे, अब देखो अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई इधर ही है, बट एरिया वेक्टर वो अभी ऐसा हो जाएगा, आपका एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, एंड दे आर गोना मेक सम एंगल थीटा। इसलिए इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, आई वांट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग अलोंग दिस एरिया वेक्टर, इसके नॉर्मली कितने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। और इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं, हम आराम से क्रॉस प्रोडक्ट लेकर इसको काम कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि इफ आई वांट टू फाइंड अ फ्लक्स लिंक्ड विद अ स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स ले, तो उसको हम लिख सकते हैं d phi स्मॉल फ्लक्स इज गोना बी गिवन एज b, और लिख सकते हो डॉट da। एक छोटा सा फ्लक्स, थोड़ा सा फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया कुड बी गिवन लाइक दिस। तो बच्चों आप चाहो तो छोटा सा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस b इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दिस इज गोना बी हाउ मच, ba cos ऑफ थीटा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है ना, आप wb से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस फ्लक्स, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई जो फैराडे साहब थे उन्होंने क्या बोला कि EMI होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा तभी होगा जब फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। बड़ा ही उन्होंने अपने मन में ऐसा बात आया, उन्होंने तो बोल दिया भैया कि ठीक है EMI तो हो रहा है, EMI would only take place if and only if the flux linked with that conductor is changing। अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी ही EMI उसमें इंड्यूस्ड होगा। और भाइयों हम इसको बच्चों, दिस इज कॉल्ड द फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये भाई साहब फैराडे का पहला लॉ हो गया, फैराडेज फर्स्ट लॉ। उन्होंने ऐसा सोचा, देखो earlier lot of laws has been given which were not based on any mathematical calculations और तो laws क्या होता है बेसिकली, उनका एक इंट्यूशंस होता है, दे डू गेट अंडरस्टैंड द इंट्यूशंस, उनके दिमाग में एक बात होती है, चलती है, बिकॉज दे डू थिंक टू अ वेरी ग्रेट डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, बहुत अंदर तक सोचते हैं। एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इफ यू गाइस गेट सम टाइम टू स्टडी, पढ़ना उसको, इट जस्ट टेल्स यू अबाउट हाउ पावरफुल आवर ब्रेन इज when we lead to the subconscious state of the mind, तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं, they are too much lost into things ना, कि उनको और कुछ दिखता नहीं है। लाइक आइंस्टाइन हैज सेड कि I don't want to be born again as an Einstein, तो उनका रीजन था कि he was a very genius guy, obviously we all know that, but the problem is he was not happy in his personal life, क्योंकि he was so much lost into the field of the researches, science, physics में इतना घुस गए थे कि उनको अपने पर्सनल लाइफ का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। And I'm sure you guys know that he got married for the 4 times, still he wasn't happy with any of them, those wives, and all the wives left him, सब उनको छोड़कर चली गई थी। तो that's the reason why he told, not only because of the wife, because of so many other reasons, he was definitely a genius, but then he wasn't happy as much as he should have been in his normal life. That's the reason why he is told in one of the interview that okay, it's good to be an Einstein, but I don't want to be Einstein in my next life. ठीक है, इस जन्म में तो हो गया, अगले जन्म में मुझे आइंस्टाइन नहीं बनना है, बिकॉज दे डू they do discover the power of the subconscious mind। तो जो फैराडे थे, he was very I would say like great scientist। इन्होंने बस एक बता दिया कि अगर होगा चेंज फ्लक्स तभी मैग्नेटिक फील्ड तभी इंड्यूस्ड EMF होगा। अब उसके बाद लोग परेशान, उन्होंने बोल दिया है तो कोई गलत प्रूफ करके दिखा दे। तो एक्चुअली ही आल्सो give us some sort of proof, उन्होंने कुछ ऐसा करके आपको मैथमेटिकली भी दिखा ही दिया था बाद में। तो हम भी उसको देखेंगे कि हाउ फैराडेज लॉज आर वेरीफाइड, क्या वो सच में सही है या फिर फैराडेज का उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था बिना किसी सिर पैर के ना। तो हम उसको भी देख लेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि induced EMF or EMF will be induced, EMF will be induced in a conductor। आप बुक का लैंग्वेज लिख लेना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। EMF will be induced in a conductor only if flux linked with that conductor changes with time। conductor changes with time। अगर वो टाइम के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा तभी EMF
इंड्यूस्ड होगा, ऐसा मैक्स फैराडेज ने बोल दिया था. दैट्स व्हाट ही हैज टोल्ड. ओके, तो लिटिल पार्ट ऑफ दिस इज नॉट कमिंग इन द कैमरा. ओके, ठीक है. सो आई एम गोना जस्ट पुट अ लाइन. ठीक है, तो दैट्स व्हाट ही सेड कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. चलो ठीक है, होगा, बट तभी होगा जब उसमें जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा तभी. व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड चेंजेस विद द टाइम. सो इसको मैं कैसे कंक्लूड करूंगा बच्चों? इफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स could be represented as function of time, that implies that EMF will be there. This implies EMF will be induced. EMF is induced. और अगर ऐसा नहीं होता है तो फैराडे ने बोला कि EMF induced नहीं होगा. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया है. बट अगर उन्होंने बोल दिया है तो बोल दिया है, और है तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते. अपने को बस प्रूफ करना है, अपने को देखना है कि भैया उन्होंने जो बोला वो सही बोला कि नहीं बोला. तो हम उसको देखेंगे. If you have seen the previous video, आपने अगर पहले का वीडियो, इसके पहले वाला EMI part 1 देखा होगा, तो I have told you that when we have a conductor, अगर एक कंडक्टर है, if it is moving with a velocity v in a, let's suppose a magnetic field which is inside the plane, अंदर की ओर है, then इसमें एक polarity develop होता है. Remember, I have told you that polarity will develop like this, और इसमें एक induced EMF होगा और हमारा एक current induced होगा इस डायरेक्शन में. इस पे हमने बात ऑलरेडी कर रखा था. ऑल गुड. और हमने देखा था कि भैया जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना होता था? BLV. हमने इस पे भी बात कर रखा था. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द फैराडे. क्या फैराडे का जो बात है, उन्होंने जो लॉज बोला है, क्या वो वैलिड करता है कि नहीं? अब हम उस पे चर्चा करेंगे. तो फ्लक्स आपको पता चल गया कि फ्लक्स क्या होता है. एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया कि फ्लक्स होता क्या. इट्स ऑल अबाउट द the number of field lines passing through the given area normal to the area or along the area vector or opposite to the area vector. हम इसको ऑलरेडी मैग्नेटिक फ्लक्स बोल चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि बेसिक बात है, थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं आज, तो थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं. एनीवेज, अब देखो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ द फैराडेज होल्ड्स गुड्स इन दिस और नॉट. ये सही करता है कि नहीं? ओके, ठीक है बच्चों. तो लेट मी जस्ट रेज दिस पार्ट. इसको मैं फटाफट इरेज कर दूं. ओ भाई साहब, चलो 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 चलो, है ना? तो चलो जी भैया, तो मैं आई एम गोना यूज दिस, है ना, मैं इसको भी यूज कर लूंगा. ठीक है, ओके. तो लेट्स से कि दिस रॉड वाज मूविंग इन दिस फील्ड, और एट किसी टाइम पे, टी टाइम पे, यहाँ पे. ठीक है, इट मींस एट एनी टाइम t is equals to 0, एट नॉट एनी टाइम एट t is equals to 0, इट मस्ट हैव बीन कहीं और बिफोर, कहीं इधर होता. At time t is equals to 0, the rod must have been here because it is moving with a velocity v, and in certain time it must have covered the distance. तो बच्चों ये जो distance है, that should be how much? v into t. If at time t is equals to 0, the rod is here. अगर यहाँ पे है, velocity v से जा रहा है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? That is vt. इस रॉड का लेंथ मान लो l. Let's say the length of the rod is l, और बच्चों जो डिस्टेंस हो गया आपका vt. Now it means it has actually covered up a certain distance, which means एक कुछ एरिया इसने कवर अप कर दिया. अब देखो, एरिया कवर अप करने का क्यों यहाँ पे हम कर रहे हैं? Why I'm just trying to find out the area. मेरे को फ्लक्स चाहिए. फ्लक्स में क्या चाहिए होता है? एरिया चाहिए होता है. देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो कि ठीक है, इस पूरे बोर्ड में सामने से फ्रॉम द कैमरा साइड से कोई फायर कर रहा है, वही बुलेट अपना वो गेम खेल रहा है. इफ आई लेट्स सपोज कि इस पूरे बोर्ड में एक सेकंड में कुछ 20 और मे बी 100 बुलेट्स इस पे लग रहे होते हैं. अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे पास थोड़े से बुलेट्स आएंगे, खत्म. इफ आई मूव लिटिल फॉरवर्ड, तो मैं चलो ऐसे देख लेते ना. अगर मैं यहां पे हूं तो आई विल बी हैविंग सम बुलेट्स ऑन मी. इफ आई मूव दिस साइड, इधर भी कुछ बुलेट लग गया, मतलब इसमें लगातार बुलेट्स आ रही हैं. ठीक है, इफ आई कम हियर, मेरे पे कुछ बुलेट और आ गया. इफ आई कम फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, आई हैव एक्चुअली taken all those bullets on me which were supposed to go on the board in this area. यहां से लेके यहां तक, because I have come from here to here, तो जितने बुलेट्स इस बोर्ड पे आने चाहिए थे उस टाइम पे, वो सब मैंने ले लिया. Now let's assume that bullet is nothing but the magnetic field lines. तो सारे के सारे magnetic field lines मेरे में आ गए from here to here. तो इस एरिया में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. इस एरिया में जितने whatever number of lines were supposed to cross, वो सारे के सारे बेचारा इसने ले लिया. तो इसके पास इनिशियली कुछ फ्लक्स होगा, अब यहां से आकर इसने कुछ ज्यादा ही फ्लक्स को
आप समझ लो कि इसमें ज्यादा फ्लक्स इसमें चेंज हो गया, क्योंकि इनिशियली इट हैड, लेट्स सपोज कि जीरो फ्लक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था. The moment it moved from here to here, it has swiped this much of area. इतना एरिया इसने स्वाइप कर दिया. It means इस एरिया में जितने भी लाइंस ऑफ फील्ड थे वो सबको इसने अपने ऊपर ले लिया. लो भाई, हम ही है विस्मय पितामह, इसने सारे के सारे खुद पे ले लिया. तो that helps you to find the flux easily because this area finding now becomes a geometrical thing. और मेरे को easily दिख रहा है कि this is going to form a rectangle. और भाई साहब इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपका लेंथ इंटू ये हो गया VT. सही है ना जी? ओके, अब देखो फ्लक्स कितना हो जाएगा. फ्लक्स चेंज, ऐसा मान लो इसमें फ्लक्स कहां से कहां चेंज हो गया, फिर मान के चलो कि इसमें फ्लक्स कितना हो गया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो दैट इज गोना बी हाउ मच. आप देख सकते हो कि बी लगा लो और एरिया, सो BL/VT. अब देखो बी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है और इसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म मान लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कांस्टेंट हो गया. तो कैन आई से दैट बच्चों कि फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम t, क्योंकि ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इट मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि जो फ्लक्स है वो फंक्शन ऑफ टाइम t है, और हम देख चुके हैं कि हाँ ऐसा होने से इसमें इंड्यूस्ड EMF होता है. देखो भैया फैराडेज का लॉ सही हो गया ना, कि इसमें इंड्यूस्ड EMF तभी होगा जब फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t हो, तभी होगा. और ये हमने सही में प्रूव करके देख लिया कि यस, फैराडेज वाज करेक्ट, उन्होंने सही बोला था. He told it very much correctly, और हमने उसको मैथमेटिकली भी अभी देख लिया. आई बिलीव है आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं होगा. ठीक है जी. अच्छा, yesterday we have done one more example. एक मैंने और किया था, उस रॉड को लेकर किया था. ठीक है, याद है आपको? याद है कि we had a rod, उसको हमने एंगुलर, तो ये तो हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन, और एक एंगुलर मोशन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. इन द मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज कि एक रॉड है ऑफ अ लेंथ लेट सपोज L, और इसको हमने ओमेगा से इसको ऐसे रोटेट कर दिया. आपको याद होगा इनिशियली इन द प्रीवियस लेसन आई हैव डन इट, है ना. तो लेट अस सपोज कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, भैया ये रॉड यहाँ पे है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनसाइड है थ्रू आउट द रीजंस. पूरी जगह मैं उतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड अपना है वो. तो नाउ लेट अस सपोज इन टाइम t रॉड यहाँ आ गया. लेट अस सपोज इन टाइम t द रॉड हैज केम ओवर हियर, इधर आ चुका है रॉड. Now by doing this it has actually covered a certain angular displacement. तो मान के चलो कि थीटा इसने angular displacement कवर किया और इसका ओमेगा जो है angular velocity है. Now I need to find the flux. So अपने को पता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसने कुछ एरिया कवर किया, तो अपने को पता है कि दिस एरिया इज गिवन एज हाउ मच. अगर आपको ये पता है सेक्टर हो गया, सेक्टर का एरिया कितना होता है, हाफ r² थीटा. वी ऑल नो दिस, वी ऑल नो दिस. यहाँ पे r क्या है बच्चों, l है, तो क्या हो जाएगा हाफ L² थीटा. थीटा क्या लिख सकते हो, अगर सपोज कि टाइम t में ऐसा होता है देन थीटा शुड बी गिवन एज व्हाट, ओमेगा t. ओमेगा t तो ओमेगा इनटू t हो गया, ये हो गया आपका ओमेगा t. तो हो गया आपका कितना, एरिया कवर्ड हो गया. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्लक्स इज गोइंग टू बी b डॉट a. तो कितना हो गया हाफ, अगर हम ऐसे लिखते हैं BL² ओमेगा t. अब देख लो फिर से वही कहानी आ गया, आपका ओमेगा कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो जो फ्लक्स लिंक्ड विथ इसके साथ, इस मोशन के साथ हो गया, आई कैन से दैट इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दो, बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, बहुत अच्छे. अच्छा मैं क्यों ही तो बार बार लिख रहा हूँ, ये सारे कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कितना हो गया, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. ओ हो, फैराडेज ने जो बोला था वो सही बोला था, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था. तो यहां तक तो अपने को इतना समझ में आ गया कि EMF will be induced only if the flux is a function of time t. अगर वो टाइम का फंक्शन है तभी ही EMF will be induced. बट अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि EMF का वैल्यू कितना होगा, EMF का वैल्यू होगा कितना. तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है बच्चों, जो फैराडे का सेकंड लॉ है, दिस इज फर्स्ट लॉ. तो फैराडे जो सेकंड लॉ है, फैराडेज सबने बोला भैया बताओ कि ठीक है मान लिए आप जो बोल रहे हो सही है, लिंक फ्लक्स चेंज होगा देन ओनली वी कैन हैव द EMF. अब इतना तो बता दो कि EMF कितना आएगा. बोला ठीक है, लो मर लो, हम बता देते हैं. सो ही सेड दैट EMF विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ जो फ्लक्स होगा बच्चों वही होगा EMF. टाइम डेरिवेटिव ऑफ जो फ्लक्स होगा वही आपका होगा EMF इंड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर. लोगों ने बोला चलो ठीक है देख लेते हैं इसको भी. तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ हो गया उसने बताया कंडीशन फॉर द EMF टू बी देयर. सेकंड लॉ बताया कि कितना EMF होगा, वो बता दिया सेकंड लॉ.
भरोसा नहीं है किसी को हो रहा था कि फैराडे साहब ने ऐसे कैसे कर दिया, उन्होंने बोला बस कर दिया, बताएंगे नहीं कैसे किए, बिकॉज उन्होंने कभी जैसे कि आप आगे पढ़ोगे नील बोर ने उन्होंने बोल दिया ऐसा ऐसा होता है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो ना। कुछ कुछ बातें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, आपकी मर्जी है, बट गलत प्रूफ करके दिखा दो। तो मैक्सवेल्स ने बहुत रिसर्च किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा एनीवेज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज कि ठीक है फ्लक्स इतना अपने को पता है, ईएमएफ उन्होंने बोला कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स है, चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, इधर ही है ना। तो भैया इसका फ्लक्स कितना हो गया, इसमें ईएमएफ कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फैराडे, ईएमएफ कितना होना चाहिए डी फाइव बाई डी टी, इसको टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा BLB, बिल्कुल सही है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देख रखा था कि भैया बिल्कुल 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 सही है। अब इसका चेक करके देख लो, तो ये हो जाएगा आपका d5/dt बच्चों, ये कितना हो जाएगा टी खाया हाफ, तो BL² ओमेगा अपॉन टी, क्या बात है, इन्होंने भी जो बोला था यहां भी वो सही हो रहा है। सो व्हाटएवर मैक्स फैराडे हैज सेड आर एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ओनली थिंग व्हाट ही हैज नॉट टोल्ड टू द वर्ल्ड कि भैया डायरेक्शन क्या होगा, उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि डायरेक्शन है क्या, फ्लक्स कैसे होगा, सॉरी ईएमएफ कब होगा एंड कितना होगा, हाउ एंड हाउ मच इज गोना हैपन, इज गोना टेक प्लेस, दैट व्हाट फैराडे सेड। बट डायरेक्शन बताने में फैराडे बोले कि भैया ये हमसे नहीं होगा, तुम जो करना है कर लो, इतना सब हम कर दिए, सारे काम मैं ही क्यों करूं। तो फैराडेज ने वो बताया नहीं कि डायरेक्शन जो पोलैरिटी डेवलप करता है वो फैराडेज ने बताया नहीं। तो उस टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, वी हैड वन मोर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज लेंज, उन्होंने बोला फैराडे ब्रो यू जस्ट चिल माड़ी, आई एम गोना टेक केयर ऑफ दिस, मैं देखता हूं इसके डायरेक्शंस को, आप टेंशन ना लो। फैराडेज ने बोला चलो ठीक है भैया तुम भी कुछ कर लो, तुम भी कुछ कर लो। तो लेंज साहब ने बताया इसका डायरेक्शन, ये फ्लक्स का डायरेक्शन, सॉरी ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे होगा और किस डायरेक्शन में होगा, दैट वाज गिवन बाय द लेंजेस। तो हम दूसरा लॉ जो पढ़ने वाले बच्चों आज, दैट इज कॉल्ड द लेंजेस लॉ, दैट इज कॉल्ड द लेंजेस लॉ। अच्छा बिफोर आई जंप इनटू दिस ना, फैराडे के बारे में एक और हम यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है और कहीं ना कहीं काइनेमेटिक से भी हम उसको रिलेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अच्छा आपको याद होगा ना न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि F external इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम चेंज होगा तभी बाहर का फोर्स होगा, है ना जी। अच्छा यहां पर देखो, फ्लक्स को हम मोमेंटम से कर ले, फ्लक्स को अगर हम मोमेंटम के सिंबॉलिक इक्वालिटी मान लें, तो फ्लक्स चेंज होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम, दैट इज मोमेंटम इज चेंजिंग विथ टाइम, then we will have the induced EMF, then it means we have some external force. So basically if the momentum is a function of time t, that is momentum is changing with time, we have external force. Likewise if the flux is changing with time, we have the external force, and that external force is given as what, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो वही है ना, सो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे क्या हो गया, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूटोनियन लॉ से भी है, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, बस ऐसा ही नहीं कि रूल है, बट वही अपने को समझना है कि हाँ ऐसा कुछ हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है, कुछ नया चीज नहीं है। अगर इसको मोमेंटम मान लेते हो तो मोमेंटम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इफ मोमेंटम इज वेरिएबल विद टाइम, इसका मतलब कि बाहर इंड्यूस्ड उस पे एक्सटर्नल फोर्स होगा। If momentum is changing with respect to time, it means the body must be having some external force, क्योंकि internal force से momentum change नहीं होता है। That is the reason why we have said that momentum conservation theory पढ़ते हैं। तो अगर momentum is a function of time, तो it means कि we have external force, और उस external force का value क्या हो गया, rate of change of momentum, which is rate of change of flux over here। तो हमने इसको ऐसे ही just a correlation है, कुछ खास बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको ये कोई रूल बुक में लिखना है, but just for your understanding मैंने ऐसा बताया। अच्छी बात है। सो बेसिकली फैराडे कुड नॉट एक्सप्लेन कि एक डायरेक्शन क्या होगा। तो लेंजेस साहब ने बोला कि ठीक है, आई एम गोना हेल्प यू आउट, तो थोड़ा हम पढ़ेंगे अब लेंज के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द लेंजेस लॉ। थोड़ा ब्रीफली मैं इसको आपको समझा देता हूं कि लेंजेस लॉ था क्या। तो द नेक्स्ट पार्ट गाइस इज लेंजेस लॉ।
अब देखो थोड़ा समझ लेना, ऐसे तो आप एक दो लाइन में इसको याद कर लोगे कि इट इज ऑल अबाउट बड़ा 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 बड़ा, ना, ठीक है। तो लेंज ने बोला भैया फैराडे आपने ठीक है, आपने सही बोला कि ईएमएफ विल बी देयर इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग और फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो ठीक है, अगर इफ एनी वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन इट विल ईदर इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, दो ही तो हो सकता है ना कुछ। अगर मैं बोलूं कि भैया मेरा जो जो दौड़ने का स्पीड है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या हो सकता है, इधर आई वुड इंक्रीज माय स्पीड विथ टाइम और इधर आई विल डिक्रीज द स्पीड विथ माय टाइम। और तो कुछ हो नहीं सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि स्पीड में तो कुछ और भी और बदल जाएगा ना, स्पीड दो ही चीज हो सकता है। वी कैन हैव ओनली टू कंडीशंस वी कैन हैव, EMF would be induced when this thing is increasing, or the second case what we can have, the induced EMF would be there if this is decreasing, और डिक्रीजिंग को हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो दिस इज व्हाट द लेंजेस हैज ऑब्जर्व्ड कि इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। बहुत अच्छे, तो उनको एक बहुत ही अच्छा सॉलिड पॉइंट मिल गया कि हम इस पे आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर इफ EMF इंक्रीज इन द चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, मतलब कि अगर EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तभी जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो दिस EMF इज गोइंग टू अपोज दैट, वो डिक्रीज करेगा। Okay, let me repeat. Lenz said if इसका जन्म फ्लक्स के इंक्रीज होने से हो रहा है, if this EMF is induced due to increment in the flux, then this induced EMF is going to decrease the flux. ये ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि इसको रोकेगा। अब देखो क्यों ऐसा रोकेगा ना, हम उसमें भी चर्चा करेंगे। अगर वो EMF फ्लक्स के डिक्रीज होने से इंड्यूस हो रहा है, if this flux is getting induced because of the decrease in the flux, then this induced EMF will oppose it, मतलब इसको रोकेगा। तो इतना बात तो क्लियर हो गया कि उन्होंने बोला कि अगर चेंज होने से हो रहा है तो वी हैव टू चेंजेस, इधर डिक्रीज और इंक्रीज, करेक्ट है ना जी। तो उन्होंने बोला कि पोलैरिटी ऐसा होगा कि वो इसके इंक्रीमेंट और चेंजेस को अपोज करेगा। तो एक सिंपल सा लाइन लिख दो, पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू हिम, पोलैरिटी of induced EMF, polarity of induced EMF will be in such a way that it will oppose the change in flux। अगर वो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो वो उसको डिक्रीज करेगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो वो उसको इंक्रीज करेगा। इसके पीछे का जो फंडामेंटल लॉ है बच्चों, आई एम श्योर कि आपने कल के क्लास को देख के समझ लिया होगा कि वी रीच टू अ स्टेडी स्टेट। अगर EMF बढ़ रहा है तो समझ लो करंट कितना हो जाएगा, वो खतरनाक। तो स्टेडी स्टेट कभी भी अचीव नहीं होगा। तो लेंजेस ने ये सब देख लिया था ऑलरेडी, व्हेन फैराडे वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा था कि वी रीच टू अ स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना ही चाहिए उसमें। इट मींस द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस का जो मूवमेंट होगा वो रुकेगा। समझ रहे हो ना, वो क्यों रुकता है? अगर आपको याद होगा कल मैंने बताया था, इन स्टेडी स्टेट क्या होता है, लेट्स सपोज इन द स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पे अगर सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इस तरफ लग रहा है, इफ इट इज मूविंग लाइक दिस, अरे हट जाएगा यार, दिस इज V है ना, तो वी हैव सीन दैट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी गेट द पोलैरिटी, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस माइनस हो जाता है। तो देयर गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर गोइंग टू बी फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, एंड दैट शुड बी E times of E, that is the electrostatic force on this. At steady state, the magnetic force and this force becomes equal and then it will stop. अगर ये स्टेडी स्टेट नहीं हो, अगर इस सपोज की पोलैरिटी इंक्रीज करते जा रहा है, फ्लक्स लिंक इंक्रीज कर ही रहा है, इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता जाएगा और कहीं ना कहीं स्टेडी स्टेट अपने को मिलेगा नहीं। तो लेंजेस ने ऐसा देखा था ऑलरेडी कि ऐसा होने वाला कि एक ऐसा टाइम आएगा कि इसको रोकेगा, इट विल अपोज दिस। तो बेस्ड ऑन दैट ही हैज गिवन हिज लॉ कि ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा, EMF विल बी इंड्यूस्ड, तो ऐसा वो इंड्यूस होगा कि उसको रोकेगा, इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट। वो ऐसा इंसान है जो खुद के रीजंस को ही रोकने में लगा हुआ है। आई एम श्योर कि आपको ये बात थोड़ा समझ में आ गया होगा, इस पर ज्यादा टाइम डिस्कस करने का कोई इश्यूज है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे को लिख दिया ऐसे कि EMF इंड्यूस्ड विल बी नेगेटिव ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ईएमएफ जो है इसके चेंज के ऑपोजिट में है। ये कोई लेफ्ट राइट नहीं दिखा रहा है, ये दिखाता है क्या कि ईएमएफ जो है इस फ्लक्स चेंज का ऑपोजिट है। अगर ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज है, और इफ इट इज डिक्रीजिंग इट इज इंक्रीजिंग। थोड़ा समझ लेते हैं, एक सिंपल से बात से समझ लेते हैं। अगर लेट्स सपोज कि वही रॉड, क्योंकि हमारा वो काम उससे बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है, तो हम रॉड को आराम से लेकर कर सकते हैं। सिंस लेट्स सपोज दिस रॉड इज मूविंग, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसमें एक मान के चलो कि टिक 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 एक हमने लूप बना दिया इसको, और यहां से यहां ये आ गया था। ठीक है, हमने उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, वी कनेक्टेड दिस विथ अ वायर। ऐसा हमने वायर से कनेक्टेड कर दिया। इसको सर्किट को हम लिख सकते हैं कि भैया ठीक है, एक ऐसा कुछ हमने बना दिया, हयो हयो हयो, है ना, ऐसा, है ना, ठीक है, ऐसा बना दिया। दिस इज योर रेजिस्टेंस। When I'm moving it from this side to this side, अगर इसको यहां से यहां तक ले जा रहे हैं, तो आई नो दैट कि फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स है आपका d∅dt, वो क्या है? दैट इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, तो हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्रॉम हियर, अगर सपोज कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इट इज हियर, एंड टाइम t इज इक्वल टू t पे इट इज हियर, दैट मींस द फ्लक्स हैज इंक्रीज्ड। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। Because of that we have an induced EMF। अगर सर्किट क्लोज कर दिया, we have induced EMF। मान लो कि इसमें करंट ऐसे आना चालू हो गया। लेट्स सपोज करंट इसमें ऐसे आना चालू हो गया, which means कि भैया यहाँ पे पोलैरिटी नहीं, करंट हम पहले ऐसे मान लेते हैं। थोड़ा आपको दोनों केसेस को आई वांट टू शो यू कि लेट अस सपोज कि करंट इसमें ऐसे हो गया, which means इट इज एट पॉजिटिव एंड, और आपका नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है ना? वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इफ देयर इज अ करंट इन दिस, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर इसमें करंट इस तरफ मूव कर रहा है, इट मींस कि ये सही है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तभी तो करंट ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, ड्यू टू दिस करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस होगा? देखो आप यहाँ पे, सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वुड बी इनसाइड। आप इस पे थंब रखो, टिक 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 मारो, फिंगर को टिप करो, टैप करो, दैट्स गोना बी पॉइंटिंग इनसाइड। Now, as Lenz's law said that this is going to, EMF induced will oppose the cause। यहाँ पे क्या हो रहा है? Flux is increasing, और ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा रहा है। If it is, it's further increasing, और ये आपका further increase कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमने एक गलत बनाया है, ऐसा करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या हो गया? फ्लक्स क्या होता है? हमने ऑलरेडी देख रखा है, BVL T। तो विथ टाइम द फ्लक्स विल इंक्रीज। ऑब्वियसली विद दिस मैथमेटिकल रिलेशन आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि विथ टाइम, जैसे ही टाइम इंक्रीज करेगा, फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा, एंड विद दिस थिंग्स इसमें और फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इट मींस ये गलत है। दिस इज नॉट गोना बी द पोलैरिटी, ये पोलैरिटी आपका नहीं होगा। तो व्हाट शुड बी द राइट वन? तो राइट वन क्या हो गया बच्चों? मैं सर्किट दिखा देता हूं एक आपको यहाँ पे ना। इसमें राइट होगा, जो करेक्ट होना चाहिए कि करंट ऑपोजिट होना चाहिए। द करंट शुड फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ऐसे करंट आपका इसमें जाना चाहिए, है ना? तभी तो देखो बाहर की ओर आएगा, बाहर की ओर, इट्स आउटवर्ड, ताकि इस फील्ड को वो डिक्रीज करे, इस फ्लक्स चेंज को वो डिक्रीज करे। समझ रहे हो? Then it means the current should be in this direction. It means the polarity of the battery, or the polarity of the EMF induced over here, should be positive up and negative down। तो मतलब होना क्या चाहिए? ऊपर में पॉजिटिव होना चाहिए, ऊपर में पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे में नेगेटिव होना चाहिए। एक करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ पोलैरिटी है, और हमने ऑलरेडी देख रखा पिछले क्लास में कि हाँ, पोलैरिटी ऐसा ही होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। मतलब कि लेंजेस लॉ भी सही है, लेंजेस लॉ भी सही है। इन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला। इन दोनों भाइयों ने मिलकर हमारे ईएमएफ को काफी आसान कर दिया है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात देखें, इफ आई लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ईएमएफ, हम क्या कर सकते हैं? साइन को हटा के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कर दो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब लेंजेस लॉ, सिंपल सी बात है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू अपोज द कॉज ऑफ इट। वो ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा कि विच विल अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज कर देगा। इफ द रीजन फॉर द ईएमएफ इज डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस फ्लक्स को बढ़ा देगा। एंड इफ द रीजन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द इंक्रीजिंग फ्लक्स, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस फ्लक्स को नीचे कर देगा। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। पुट योर थंब,
टिक टिक टिक, जहां भी ये फिगर टैप करता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करना है बच्चों, पुट योर थंब लाइक दिस और इसको कर्ल करोगे तो बाहर से, इसके पीछे से देखो कि आपका हाथ, अगर आप जादूगर होते तो हाथ बोर्ड के पीछे से जाकर इस पे बाहर की ओर निकलेगा यहाँ पे ना। तो इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी आउटसाइड इट। आपने इसको बायोट सेवर्ट में हमने ऑलरेडी देख रखा है। लाइकवाइज अगर मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पुट योर थंब, कर्ल योर फिंगर्स, इट्स गोना टैप इट टुवर्ड्स इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। ऑन द अदर हैंड हम इस तरफ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अपने फिंगर टैप रखो इसको और पूरा घुमा के आएंगे इस पे, तो भैया इस पे अंदर की ओर जाएगा। तो इस केस में इस तरफ फील्ड होगा अंदर की ओर और इस तरफ फील्ड होगा बाहर की ओर। एंड हियर द फील्ड ऑन दिस साइड इज गोइंग टू बी आउटवर्ड, देखो यू नो इट्स गोना बी आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा। तो बेसिकली ऐसे हमारा, अगर आपको याद होगा तो ऐसे ऐसे वो लाइंस ऑफ फील्ड बनता है और डायरेक्शन ऑफ ऐसे आपका ऐसे ऐसे होता है। कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, आई थिंक टुडेज कैमरा सेटिंग वाज स्लाइटली वियर्ड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई बिलीव कि फोकस में इश्यूज आ रहा है। आई एम गोना चेक दिस आउट, अगर कुछ इश्यूज होगा तो आई विल लेट यू नो। एनीवेज, तो आज हम इधर ही रुकते हैं। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैराडेज लॉज, लेंजेस लॉ। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है, इन दोनों का कार्यस्थानी को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं और आप भी इसको बिलीव की समझ जाओगे। अगर एक बार में समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने आज डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, रीजन बेइंग थ्योरी था, डिस्कशन था, एक कहानी की तरह आप इसको आज समझ लो और तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आई वाज लाइक स्लाइटली क्विक बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक अ स्टोरी। फैराडेज और लेंजेस ने क्या किया उसका एक थोड़ा सा स्टोरी आपको मैंने सुनाया। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ करा है, उसका जानना हमारे बस के बात अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी इस आईक्यू के साथ नहीं है, इस काम के साथ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। लेट अस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं फैराडेज और लेंजेस के एप्लीकेशंस के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और फिर हम लोग स्लोली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, so till then keep learning and keep studying and do not forget, I said don't like, it doesn't mean that, do like and do not forget to like, share and subscribe with your friends and of course अब मेरे को बताओ कि if things are going good, if you want something else, you have the comment box and you have my email ID up there. को मेरे से बात करना चाहता है, you have the contact resources up there. ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।